Assalamualaikum everyone. This is Ansab and today we have been joined by Hamza Wasti. This is the fourth episode of our series where we are discussing the football landscape in Pakistan. And Assalamualaikum Wasti bhai, how are you? I'm good, Alhamdulillah, Allah ka shukr. और कैसा जा रहा है आपका लाहौर का? Everything is good, everything is going good, Alhamdulillah, and it's a really good moment कि आप लोगों ने इसके लिए बुलाया. I have been seeing your past podcast on this, और this is a good initiative towards development of football in Pakistan. Thank you so much. अच्छा, so वास्ती भाई, please tell our viewers कि आपने कैसे स्मर्फ शुरू की and I think how many years ago did you start and what was the main motive behind it and where are you standing right now? Basically, the main idea behind starting Smurfs was by Hashim, and it started 5 years back when they started as a team. But after 1, 2, 3 months, I joined Hashim and we started off with the all plan and everything. और माशाल्लाह, the main mindset from the day one was कि कुछ अलग करना है. We need to change this thing. This perspective of football academies in Pakistan needs to be changed. ये जिंदगी भर ये चीज़ नहीं चलेगी कि एक बच्चा आ रहा है, their parents are paying out, they are doing all they could, but आखिर में क्या हो रहा है? There is zero development. We are not getting good players. So this mindset totally changed the outlook कि जी हम लोगों ने किसी तरह इस चीज़ को आगे लेके चलना है. 5 years back when we started in late 2018, तो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में थी, वो ये थी कि it's a long journey, it's not an easy journey plus, क्योंकि वो easy journey इसलिए नहीं है कि it's something new, we are going for something new. When you are going for something new, तो आपने सारी demotivations face करनी है, आपने सारा criticism face करना है, and you need to be focused on your dream कि मैंने ये achieve करना ही करना है. तो अब उस चीज़ के लिए we look forward कि ठीक है जी हमारे पास 20 बच्चे हैं, we started a academy session with 20 kids and today we are at a point we are standing on 29 centers with 36 programs. माशाल्लाह. 6 different cities. ये भी important चीज़ है. None of the club in whole Pakistan has ever planned to launch a center out of his city. We did that. और जिस तरह हमने उसको sustain किया from a very hypeful launch in Lahore to our downfall days till now हम लोग वापस अपनी height में आए. So this is the part of the journey. जैसे मैं बताऊँ, business can never be constant. बिल्कुल. ठीक है, can be never be constant. There's always a curve. Exactly, मैं बच्चों को एक चीज़ समझाता हूँ और मैं बल्कि इस चीज़ को इसके साथ लिंक आउट भी करूँगा. मैं बच्चों को कहता हूँ, whenever I see a 13-12-year-old kid coming to me and वास्ती भाई I didn't perform good today, मैं उनको ना एक चार्ट के ऊपर ना हार्ट बीट बना के देता हूँ और मैं हार्ट बीट बना के देता हूँ. मैं कहता हूँ बच्चा when will this heart beat go constant? तो मुझे कहता है वास्ती भाई when we are dead. तो when we are dead and the heartbeat is going constant, तो it means throughout our life we need to go up, we need to come down. बिल्कुल. ठीक है, we can't be constant throughout our life. तो अब हमें वही चीज़ बिजनेस में रखनी पड़ेगी कि we need to focus one thing कि अगर आपका एक दिन अच्छा गुजर रहा है तो आपका शायद दूसरा दिन बुरा गुजरेगा, फिर 3 दिन अच्छे गुजरेंगे, फिर चौथा दिन बुरा गुजरेगा. तो ये जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, इट रियली नीड्स टू बी इन माइंडसेट कि जी हम लोगों ने एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया एंड वी नीड टू मेक इट इन अ लॉन्ग टर्म रन. और माशाल्लाह मैं आपको आज बता रहा हूँ, वी आर सिटिंग ओवर हियर, we are launching 3 new centers in Lahore. तो this journey will keep on going. ठीक है, गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखता है, हर इंसान सीखता है. मैं बच्चों को कहता हूँ, and in business we are also learning from our mistakes. But the main thing is कि आप अपनी गलती से सीख रहे हो और उसके बाद उसको डेवलप कैसे करें वापस. बिल्कुल. अच्छा, so you just mentioned कि हमारा डाउनफॉल आया था लाहौर में. So I'd like to ask कि what do you think was the main reason behind it and how did you come out of it? Downfall, the main reason always is that कि शायद I think this कि आपका खुद होना और किसी और का होना is a totally big difference. ठीक है. बिल्कुल. In the start we were so passionate. हम लोग रोज उठ के आते थे. I still remember I used to come every week. अच्छा. Every week Lahore. समात लाहौर every week after till first 6 months. मुझे तो याद है, मैं ज़्यादा भी हुआ तो 2 हफ्तों के बाद तो 1 दिन 3 दिन के लिए आना ही आना. तो ये जो कांस्टेंट थिंग थी ये चेंज होनी थी क्योंकि वी कांट गो फॉरवर्ड विद दिस थ्रू आउट आवर लाइफ. बिल्कुल. ठीक है. व्हाट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम द पास्ट टाइम कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वी कैन गेट द सेम माइंडसेट ऑफ द कोचेस एज वी हैव. ठीक है. अब मौसम इज सिटिंग ओवर हियर, ही इज वन ऑफ द लैड्स हु हैज बीन विद द क्लब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये हमारे कोच है, ही डिड माय लेवल 2 विद मी. अच्छा. ठीक है. यूएफए लेवल 2 इसने मेरे साथ किया. तो द थिंग इज कि समटाइम्स आई फील कि ये वो लोग हैं जो हमारी तरह हमारे क्लब को ओन करते हैं. जैसे वो विजन ओन कर रहा है, वो बंदा साथ है. देखिए, ओन करना ये नहीं होता कि हर बंदा जॉब कर रहा है. एवरीवन इज डूइंग हिज जॉब. ठीक है. एंड आई गेस वी आर द मोस्ट हाईली पेड कोचेज हैं हमारे पास. हमारे क्लब के अलावा किसी के पास इतने हाईली पेड कोचेज नहीं है. ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल सकता हूँ. ठीक है.
द रीजन बिहाइंड इज नॉट द मनी, द रीजन बिहाइंड इज कि ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि वी नीड टू वर्क फॉरवर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर किड्स। बिल्कुल। ठीक है, वो फिर स्मर्फ्स का बच्चा नहीं, वो इंटेलिजेंट का बच्चा है। ठीक है, जब ये माइंडसेट इंडल्ज होगा तो ऑटोमेटिकली द डेवलपमेंट भी डिफरेंट। फिर एक और मसला आपको बताता हूँ, लाहौर में बैकफॉल होने का एक बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स थिंक दिस कि बेंच पे जाके बैठ जाना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गोइंग इन द ग्राउंड फ्रॉम अ स्मॉलर टीम। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फुटबॉल। एग्जैक्टली, मैं बच्चों को ये बात कहता हूँ, देखें आज भी मैं ग्राउंड में उतरता हूँ ना तो आई हैव बीन टीचिंग, मैं 10 साल हो गए कोचिंग कराते हुए, 10 साल से मैंने डिफरेंट माइंडसेट के बच्चे देखे। आज का माइंडसेट का बच्चा और 10 साल पुराना 13 साल का बच्चा, दे आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, टोटली डिफरेंट। आप उसको मैचअप ही नहीं कर सकते किसी भी सूरत, आप ये सोच ही नहीं सकते कि वो दोनों आपस में मैच आउट 100%। ठीक है, तो जब ये 10 साल में इतनी बड़ी डेवलपमेंट आई है तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम लोग एक दिन में प्लेयर बन जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो प्लेयर जब तक ग्राउंड में नजर आ रहा है, प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो छोटी टीम में भी नजर आनी है और बड़ी टीम में भी नजर सारे प्लेयर जो बढ़े हैं वो किसी छोटी टीम से ही निकले थे। ठीक है, अगर आप अपनी पीक टाइम अपने 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में अगर आप बेंच पे जाके बैठ जाओगे तो नो वन वुड नो कि वास्ती कौन था अगर वो काम नहीं कर रहा था। 100%। ठीक है, मैं आपको ये बात पे बोल रहा हूँ कि इफ वास्ती इज समवन या एनीवन इन दिस फील्ड इज समवन हु इज टुडे, वो उसकी मेहनत की वजह से। ठीक है, अल्लाह नवाजता है लेकिन नवाजने के बाद वो कहता है कि मेहनत तुमने खुद करनी है। ठीक है, कुछ को वो कहता है तुम मेहनत करो मैं तुम्हें नवाजूंगा, कुछ को वो कहता है मैं तुम्हें नवाजता हूँ फिर तुम मेहनत करो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्लाह दोनों तरफ से एक चीज क्लैरिफाइड रख रहा है और वो मेहनत है। है। अगर वो मेहनत रोक रही तो खत्म है, फिर बात करो। बिल्कुल। सो ये बहुत ही अच्छी बात आपने की है। मैं यही पूछना चाहूँगा कि यू जस्ट टोल्ड अस दैट यू आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल सिटीज़। Exactly. सो आपने डिफरेंट बच्चे को देखा है। मेरे एक्सपीरियंस से इस्लामाबाद का बच्चा अलग है फ्रॉम व्हाट यू हैव इन लाहौर, लाहौर का अलग है फ्रॉम व्हाट यू हैव इन कराची एंड सो ऑन। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक कि ओवरऑल टैलेंट वाइज वो लोग कैसे हैं, फिर मेंटेलिटी वाइज कैसे हैं, एंड इफ वी वांट के टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम ऑन वन पेज, उस चीज़ में हाउ बिग ऑफ अ रोल आर यू प्लेइंग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन टैलेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि टैलेंट में कोई डिफरेंस है। हर बच्चा उसी चीज़ के साथ पैदा हो रहा है, उसी टैलेंट के साथ से पैदा हो रहा है जो अल्लाह ने लिख दिया गया उसके लिए। ठीक है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, द रीजन द सेकंड दो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये है, अच्छा प्लेयर, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर अच्छा कब तक लगता है? जब तक वो 10, 11, 12, 13 साल का। ठीक है, उसके बाद दो मेहनत है। उसके बाद मेहनत है। बिल्कुल। अगर उसने वो मेहनत नहीं की तो उसका टैलेंट खत्म है। ठीक है, और ये मैंने होते हुए देखा है प्लेयरों का। ठीक है, सिर्फ मैं आपको बताऊं, आप तो लाहौर और इस्लामाबाद को कंपेयर करो, मैं आपको पिंडी और इस्लामाबाद कंपेयर करके देता हूँ, विच इज़ बेसिकली शायद मुझे और हमें कभी भी नहीं लगता कि हम लोग पिंडी कब पहुँच गए और इस्लामाबाद कब पहुँच गए। ये इतने करीब शहर है। ठीक है, तो द नियरेस्ट ट्विन सिटी, इसलिए इसको ट्विन सिटी कहते हैं, दोनों बहुत करीब है। आई गेस नॉट मोर देन 10 किलोमीटर्स का डिफरेंस है दोनों सिटीज़ में। तो वजह क्या है? वजह बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इस्लामाबाद का बच्चा हमारे लिए सुबह 6 बजे भी सेशन पे वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 200+ किड्स, सुबह 6 बजे। पिंडी में अगर पेपर चल रहे हैं तो आपको शाम में शायद 20 बच्चा भी ना मिले। Yeah, I thought it would be the opposite. ठीक है, ये ट्रू कहानी है। ठीक है, एंड देन द सेपरेशन इज ऑलवेज शोन अप हाउ कि वो बच्चा जो बच्चा रोज आके मेहनत कर रहा है, ही इज इवेंचुअली गेटिंग बेटर। बिल्कुल। टैलेंट में फर्क नहीं है, ये बात लोग दिमाग से निकाल दें कि शायद वो टैलेंटेड जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को बनते हुए देखा है जो टैलेंटेड 0% टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी मेहनत ने उनको बनाया। बिल्कुल। और वो प्लेयर्स, ट्रस्ट मी, दे आर मोर बेटर देन द प्लेयर्स हु आर टैलेंटेड। व्हाई? वो आपके लिए उस वक्त तक मैच खेलते हैं जिस वक्त तक आखिरी विसल नहीं होती। विसल नहीं हो जाती। वो कभी गेम के अंदर हार नहीं मानते। वो 5-0 भी आ रहे होंगे ना, वो आपको आखिरी मिनट तक गेम करके दिखाएंगे। ठीक है, टैलेंटेड प्लेयर एक टाइम पे आएगा, कहेगा मेरा टैलेंट किसी काम नहीं आ रहा, मैं जान नहीं मारता। जान नहीं मारता। ठीक है, लेकिन जो जान मारने वाला प्लेयर है, जिसने हार्डवर्क देखा हुआ है, जिसने मुश्किल वक्त देखा हुआ है, जिसने अपना डाउनफॉल देखा हुआ है, वो आपको आखिरी मिनट तक जान मार के देगा। बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी, नॉट अबाउट द टैलेंट। गॉटचा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मेरा सवाल ये होगा कि यू जस्ट मेंशन्ड दैट बच्चा जो है ना मेहनत करना रोक देता है।
मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त एटमॉस्फेयर इन पाकिस्तान, फुटबॉल एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है, उसमें अगर मैं एक 13 साल का बच्चा हूँ, मुझे बहुत शौक है खेलने का, मेरे में टैलेंट भी है, सिर्फ मेहनत वाली चीज़ रहेगी। मेहनत कैसे होगी कि मैं किसी अच्छी अकेडमी में जाऊँ, Exactly. मैं वहाँ पे जाके कोचिंग लूँ प्रॉपर और वहाँ पे खेलूँ। अब मैं जब छोटा था तब तो ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बिल्कुल। आपके कोचेस बहुत हाई लेवल पे खिला रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह को कोचिंग दे रहे थे, हमारे लेवल पे तो था ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि पेरेंट्स वाली चीज़ बीच में आ जाती है। अब 13-14 साल के बच्चे ने ओए लेवल में जाना है, उससे वहाँ पे पढ़ना है, वो उनकी अकेडमीज जाए या फुटबॉल अकेडमी जाए, वहाँ पे हम उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे। एंड उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दोज किड्स इन पाकिस्तान। ये आपका एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं आपको बताऊं, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे प्लेयर के पास फ्यूचर क्या है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है, 100%। ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि उस बच्चे ने आगे करना क्या। अगर उसने किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं फुटबॉल स्कॉलरशिप रहता। डोंट गो फॉर। अब देखो जो चीज़ इस वक्त अचीवेबल नहीं है ना, उस चीज़ को फोकस ना करो, ठीक है। लेकिन जो चीज़ अचीवेबल है उसको तो फोकस करो ना, ठीक है। क्या पता अल्लाह की बेहतरी किसी वक्त भी आ जाए हमारे लिए और इट ऑल गेट्स चेंज्ड, ठीक है। सबको पता है क्या चेंज होना है क्या नहीं होना, ठीक है। Whereas one thing I ask and request every single owner of every single club, guys, it's a salute to you guys. You are working on this game. Whether you are working on a football field, whether you are working on a futsal field, whether you are working on a ground where there is no proper grass, you are doing a very good job. क्यों? ये सदका जारिया है। आजकल का 12, 13, 14 साल का बच्चा अगर फुटबॉल नहीं खेल रहा तो वो हर गलत काम कर रहा है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक सदका जारिया है और अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि जी ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना। जब एक चीज नहीं है तो उसका मतलब क्या है? वो बच्चा खत्म हो जाए। बिल्कुल। अब मेरी बात समझे ना कि हम लोग क्यों इस लड़ाई में लड़ रहे हैं कि उसने ये किया, इसने वो किया। हमें इस लड़ाई में लड़ना चाहिए उसने ये अच्छा किया और हमने ये अच्छा करना है। बिल्कुल, ठीक है। हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। वी आर द वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ दिस फुटसॉल गेम। हम लोगों ने बहुत जान मारी, हमने बहुत प्लेयर डेवलप करके दिया अकेडमीज में। अभी आप जिस टीम में कोई अच्छा यंग प्लेयर खेलते हुए देखोगे, पिंडी इस्लामाबाद में मेरे हाथ से होकर गुजरा होगा, 2 दिन के लिए भी गुजरा है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और वो मुझे अभी भी उतना प्यार और रिस्पेक्ट देता है जितना वो मुझे पहले देता था, और मैं उस बच्चे को भी उतनी प्यार और रिस्पेक्ट देता हूँ जितना मुझे। ये उस प्लेयर का डिसीजन है कि उसने किस क्लब में खेलना है, which shouldn't affect my relation with them. बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। 100%। क्योंकि मुझे पता है यार, देखो दुनिया गोल है, घूम के फिर वापस उधर ही आना, ठीक है। तो जब घूम के वापस उधर आने ना, तो कल को you will be the winner, but we will be feeling proud of it. Exactly कि यार मैंने उस बच्चे के साथ पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मनी नहीं रखी। इट्स हिज प्रोफेशनल डिसीजन। टिल द डे वो आपको आके रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके लिए इज्जत कर रहा है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो हमें लोगों को ये इस चीज़ पे सपोर्ट करना पड़ेगा कि यार द मेन फोकस फ्रॉम द डे वन हमारी एकेडमी का यही था, हमारा यही है। लोग हमें नहीं समझ पाए आज तक अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारा मोटिव यही है। वी वांट टू गो विद द होल कम्युनिटी, वी डोंट वांट टू गो अलोन, ठीक है। मैं कहता हूँ हमारे बच्चों को, मैं आप यकीन करें, कल रात आई वाज सिटिंग विद द क्लब्स ओनर, मैं उनसे कल रात बैठ के डिस्कस यही बात कर रहा था कि कब से ये हुआ पाकिस्तान में फुटबॉल मैचेस बच्चों के क्यों खत्म हुए? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे लिए जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी गेम से। आप लाहौर में कोई भी एज कैटेगरी टूर्नामेंट दिखा दो जो एज कैटेगरी पे हो रहा हो, मैं बदल दूंगा इस चीज को। कोई एक टूर्नामेंट करके दिखा दो, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कोई एक टूर्नामेंट जो एज कैटेगरी पे हो रहा हो। हमने लास्ट ईयर लीगा स्मर्फिया करा के दी, मेन डेस्क पे बैठा, ओनर होके क्लब के मेन डेस्क पे बैठा हुआ था, नादरा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, टीमों को ड्यूरिंग द मैच बाहर किया, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते हमारा, जब हम खुद गलत नहीं करते तो हम क्यों किसी को गलत करने में। आप यकीन करो हमारी इन टोटल 96 टीम्स खेल रही थी स्मर्फ्स की, अपनी 96 टीम्स इन टोटल खेल रही थी स्मर्फ्स की खाली 276 टीम्स लीगा में पार्टिसिपेट हुई है लास्ट ईयर, ठीक है। लेकिन हमने ओपन रखा हुआ था, इफ एनी ऑफ द टीम हैज एनी ऑब्जेक्शन ऑफ एनी ऑफ आवर प्लेयर्स, अभी आए हम उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, और अगर हमें 2 लोग कहते हैं कि वो फिजिकली भी अब बड़ा लग रहा है, हम उसको बाहर कर देंगे, हम क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। And trust me, there was 0 objections on the Smurfs team. एक ऑब्जेक्शन हुआ था इन द अंडर 17 फाइनल, और अनफॉर्चुनेटली शायद उन्होंने शुगल में किया था, जो मर्जी किया था, हम फाइनल जीत गए। और उन्होंने आके एक ऐसे प्लेयर किया कि 2006 कैटेगरी में 2008 का बच्चा खेल रहा था और वो हमारा सबसे छोटा बच्चा था, उस पर किया उन्होंने ऑब्जेक्शन।
तो इट वॉज समथिंग एल्स। उसके अलावा स्मर्फ्स के किसी भी बच्चे पे कोई ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड कर ली है ना, तो हमारे कोचेस का क्या काम था, बिफोर स्टार्टिंग द लीग इन लोगों ने बैठ के एक एक प्लेयर वेरीफाई किया था। हमारे हेड कोचेस ने सेंटर कोचेस को इंस्ट्रक्शन पास की, आप लिस्टें पूरी करके दो, हम लोग आके वेरीफाई करेंगे कि उस दिन कोई ये खड़े होकर ना कहते स्मर्फ्स तो खुद ये कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। ठीक है, ठीक है। और 220 आई गेस प्लेयर्स हमने बाहर, 220 प्लेयर्स थे, पता नहीं कितने प्लेयर्स थे, कुछ जितने प्लेयर्स बाहर किए, जितने प्लेयर्स बाहर किए। अच्छा, ठीक है, विच इंक्लूड्स होल टीम्स एज वेल। कुछ 10 तो 12 तो हमने पूरी टीम ही बाहर कर दी थी। ठीक है, उसमें एक टीम के ऊपर ना, एक टीम ने आके बड़ी बदतमीजी की, एंड द होल मैनेजमेंट टीम वाज स्टैंडिंग विद मी। बच्चे थे सारे, और वो भी आपको पता है बच्चे तो जज्बाती होते हैं। वास्तव में इन्होंने बोल कैसे दिया ये वो, मैंने कहा बी काम, लेट देम स्पीक, लेट अस प्रूव। अगर हम प्रूव कर देते उनको गलत, तो इट विल बी द बिगेस्ट डिसरिस्पेक्ट फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल। अब यकीन करो, आधा घंटा वो लड़ाई चलती रही। उस बंदे ने मुझे बंदे से कॉल करवाई कि जी वो आप किस तरह ये कर सकते हैं। ही वॉज द पर्सन इन नाजरा। उस बंदे ने अपने आईटी डिपार्टमेंट को कॉल किया। आईटी डिपार्टमेंट ने कहा कि जी सर, दिस इज द लूप होल इन आवर सिस्टम एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दैट लूप होल। ठीक है, ठीक है, और हमने उसका फायदा उठाया। तो हम जब उल्टे काम कर सकते तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते उस काम? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। हमने एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वेरीफाई करके दिया, आप यकीन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और जब हमारी ये सारी बात हो गई, तो आफ्टर दैट दे आस्क्ड अस कि अगले साल जब आप कराओगे लीगा, तो नादरा विल बी हेल्पिंग यू आउट फ्रॉम द प्रॉपर वे, कि इन बच्चों को समथिंग रियली गुड, दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि यार इट्स रियली 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 इम्पोर्टेंट टू बी फेयर। बिल्कुल, फेयर खेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और कोई बच्चा दो नंबरी नहीं करता, कोच करता है। कोच करता है 100%, बिकॉज उसमें फिर वही चीज़ आ जाती है ना कि जीतना। आप जरा उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, हाउ यू स्टार्टेड दैट एंड व्हाट वाज द नीड दैट यू थॉट कि हमें ये चाहिए बिसाइड्स द एज ग्रुप वाली चीज़। आप यकीन करो, इट वाज जस्ट अ शुगल। नाम एक बहुत शुगल में रखा गया था। हाँ, बिकॉज स्मर्फ्स का नाम हो रहा, और बाद में अब जाके शायद हमें फील होता है कि लोग ये समझते हैं कि हमने अपने नाम के साथ एसोसिएट कर दिया, तो शायद हम कोई दो नंबरी भी करते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, बट इट वाज समथिंग कि हमने शुगल में स्टार्ट किया। लीगा वाज द वर्ड, स्मर्फिया हमने स्मर्फ से निकाल के उसको स्मर्फिया बना दिया। एंड वी स्टार्टेड ऑफ इट एट आवर फर्स्ट वेन्यू इन रिचमंड कैंपस। हमारा रूट्स का रिचमंड कैंपस था, उसके अंदर शुरू किया। वी ओनली हैड 8 टीम्स इन द फर्स्ट सीजन, वी देन वेंट टू 50 टीम्स इन द सेकंड सीजन। इसी तरह 100 टीमें थर्ड सीजन में, 150 200 टीमें थी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, 150 200 सीजन 3 में 4 में थी, और लास्ट सीजन इट वाज अराउंड 250 to 270 टीम्स, जिसमें सबने निकाली शिकाली जो भी खेले। द रीजन बिहाइंड दिस ऑल वाज नॉट द सीनियर कैटेगरी। मैं आपको बता दूं, सीनियर कैटेगरी वाज नॉट आवर फोकस। सीनियर कैटेगरी को हम हमेशा इसलिए रखते हैं, द रीजन इज कि वी डोंट वांट टू डू एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा विनिंग भी सीनियर कैटेगरी में होती है सब। हमारा डे वन से जो मेन फोकस है वो यही है कि वी नीड टू गिव द यूथ अ प्रॉपर फुटबॉल स्ट्रक्चर, फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें वो बच्चे जिसके लिए पूरा साल इंतजार करते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे हर क्लब के बच्चों के मैसेज आते हैं, मुझे और आशिम को, व्हेन इज लीगा हैपनिंग, इस बार फिर सर्दी में होगी। ठीक है, और आप यकीन करो यार, आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर माई मैनेजमेंट टीम, फॉर माई किड्स, जो मेरे साथ मिलके टूर्नामेंट कराते हैं। हमारे पास लास्ट टाइम 50 इंटर्न था इसके लिए, 50 इंटर्न और 20-25 जो मैनेजमेंट मेन मैनेजमेंट के लोग हैं वो तो कर ही रहे थे। वो बच्चे रात को 2 बजे तक दिसंबर की सर्दी में अयूब पार्क में खड़े होते हैं। अब अयूब पार्क में आओ, आपको पता चल जाए अयूब पार्क की सर्दी है क्या। अगर मेन रोड पे अगर 2 डिग्री चल रहे हैं तो अयूब पार्क के अंदर -1 चल रहा होगा। इतना फर्क है उधर यार। ठीक है, तो वो बच्चे आके खड़े होते हैं ना, तो इट्स नॉट बिकॉज वो चाहते हैं ये करना, बेसिकली इट हैज अ डिफरेंट रिस्पेक्ट फैक्टर फॉर अस एंड द क्लब। एंड फिर वो ऑब्वियसली फुटबॉल वाला फैक्टर आ जाता है कि द लव फॉर द। ठीक है, तो वो जिस दिन खत्म होता है इवेंट, तो इट्स नॉट एन अचीवमेंट फॉर अस, इट्स एन अचीवमेंट फॉर देम एज वेल, कि वास्तविक हमने कराया इस दफा। एंड द लास्ट सीजन, आप यकीन करो, मुझे एक बच्चे ने आगे कहा, वास्तविक आपको एक बात नहीं पता, वी डिडंट हैड अ सिंगल फाइट थ्रू आउट द इवेंट। बहुत पाकिस्तान में दिस इज अ ह्यूज, सबसे बड़ी चीज फुटसॉल लेवल पे, ठीक है, कि लड़ाई नहीं हुई ग्राउंड में, एक भी लड़ाई ना। कि हमारे तो उधर यार कैटेगरीज आई गेस 14 कैटेगरीज थी, 15। ठीक है, हमारे ज्यादा छोटों में तो इशू नहीं होता, 18 के करीब जब जाते हो तब देखो, आपको सीनियर कैटेगरीज में 2 कैटेगरीज थी, कैटेगरी ए थी, कैटेगरी बी थी। नो लड़ाई, अंडर 17 कैटेगरी, अंडर 19 कैटेगरी, अंडर 15 कैटेगरी, हर कैटेगरी। ठीक है, बात क्या है जो मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ, वी kept our rules very clear and very strict। बिल्कुल।
बिकॉज मेरी इससे एक और चीज़ थी कि यू आर अ क्लब, ठीक है, यू स्टार्टेड ऑफ एज अ क्लब एंड एक क्लब एक लीग करा रहा है, तो उसमें तो आपको बहुत मुश्किलें आई होंगी कि यार आप क्लब होके लीग करा रहे हो और फिर आपने फेयरनेस भी दिखानी है, जबकि आपकी 100 टीमें आपकी अपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं उस चीज़ आप यार यकीन करो, देखो कभी कभार हमें फील हुआ दूसरे तीसरे सीजन में ना कि वी शुडंट लेट आवर प्लेयर्स प्ले, में। स्मर्फ्स की टीम नहीं खेलेगी। मुझे याद है एक दफ़ा बीच में शायद ठीक अनाउंसमेंट भी हुई थी है, कोई। हमारा प्लान था कोई ऐसा कि हम करेंगे, सीनियर कैटेगरी में हमने फिर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन फिर हमें क्या समझ आया, हमें समझ ये आया कि यार पाकिस्तान में एक इवेंट होता है जो फेयर हो रहा है, उसमें भी ना खिलाएं, ना खिलाएं, ठीक है। फुटबॉल खेलने का हाँ, मौका ही नहीं मिल रहा। उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि डोंट लेट एनीवन स्पीक अगेंस्ट यू, ठीक है। किस तरह? मौका ही ना दो। मौका ही ना दो। फिर हमने उसके लिए 2 महीने पहले से काम शुरू किया कि हमने अपनी स्क्रूटनी पहले की, अपना सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया, हमारे बच्चों की फाइलें रेडी थी, सब कुछ रेडी था। आप यकीन करो इधर से टीमें आई, एक टीम के डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, पता नहीं उनकी एंट्री हो गई, जो भी हो गया, मुझे ऑब्जेक्शन हो गया ड्यूरिंग द मैच। मैंने उनको कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, जी उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, बच्चा जो। मैंने कहा देखो यार, इफ दिस इज गोइंग ऑन आई विल स्क्रैच ऑल द कैटेगरीज इन, जितनी भी टीम आपकी कैटेगरीज में है वो सारी स्क्रैच हो जाएंगी। नहीं वो देखिए, मैंने कहा देखो यार आप रिजॉल्व कर सकते हो, बट फॉर मी एवरी वन हैज़ द सेम रिस्पेक्ट। किस तरह सॉल्व आउट करना है आपका, नहीं शो अप हुआ, वी हैड टू स्क्रैच दैम आउट। बाद में बड़ा हमारे ऊपर उस बात पे वो भी हुआ कि जी नहीं ये देखें एक टीम आई है बाहर से, जो भी यार देखो वी हैव द रूल्स, वी नीड टू गो फॉरवर्ड टू द रूल्स। अगर मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आप लाहौर से आ रहे हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप कराची से आ रहे हो, मैं किसी और को सपोर्ट करूंगा फैसलाबाद से आ रहा है, तो मैं पिंडी इस्लामाबाद वालों से क्यों जाती करूँ? क्यों जाती करूं? मेरे लिए उस वक्त कोई शहर नहीं है, उस वक्त मेरे लिए सब बच्चे एक जैसे हैं। आप यकीन करो मुझे इतना दुख होता था ना जब कोई अंडर 13 या अंडर 15 में टीम हार के बाहर जाती थी ना, और स्पेसिफिकली वो कोई प्रॉपर क्लब नहीं होता था, वो कोई टीम्स होती थी टेक्सला से आई हुई हो, वी यूज टू अकोमोडेट एट द मैक्स लेवल के यार जूसेस आई हुई यार उनको जूसेस दे दो, कुछ भी कर सकते हो ना उन बच्चों को अकोमोडेट करो कि दे वर हियर जस्ट फॉर अ पैशन, ठीक है। वरना कोई पागल नहीं है इतना दूर से बगैर किसी कोच के, बगैर किसी क्लब नेम के आपके लिए खेलने आ रहा है, ठीक है। तो दे हैव अ मोटिव कि यार उन्होंने ये टूर्नामेंट खेलना है, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। वो एक जर्नी का पार्ट बन रहे हैं, और वी आर नॉट एबल टू डू ऑल दिस विदाउट देयर जर्नी, विदाउट देयर हेल्प, ठीक है। अगर वो टीमें नहीं आएंगी तो हम कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये उनका प्यार है हमारे लिए, तो वी नीड टू गिव देम द रिस्पेक्ट, बट गिविंग रिस्पेक्ट डजंट मीन दैट यू गो ऑफ द रूल्स। आपने रूल्स के ऑफ नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। डिड यू गाइस हैव अ फीमेल कैटेगरी, एंड आप लोग फीमेल फुटबॉल के लिए क्या कर रहे हैं उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे, बिकॉज इन क्रॉसबार एज वेल हम लोग एक हमारा प्लान चल रहा है कि हम एक स्पेसिफिक डे रखेंगे, विल टॉक विद द अरीनाज, एंड यू नो व्हाट द मॉडल इज राइट, बुकिंग वाली चीज़। हम अरीना से बात करेंगे कि हमें घंटा या 2 घंटे ना स्पेसिफिक चाहिए ओनली फॉर द फीमेल्स, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि लड़कियां जो है ना वो मैचेस खेलने नहीं आती, प्राइवेट मैचेस की बुकिंग होती ही नहीं है। बिल्कुल, मैंने बहुत कम देखी है, होती भी है तो वो कोई दोस्त वगैरह होते हैं, 2-3 होते हैं, वो उस तरह से हो रही होती है, प्राइवेट बुकिंग होती ही नहीं है। तो हम उनसे ये बात कर रहे हैं कि पूरा अरीना आप हमें दो उन 2-3 आवर्स के लिए, और वो खाली स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए होगा और कोई ग्राउंड उसमें बुकिंग नहीं होगी। सो वुमेन्स फुटबॉल हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लब, ठीक है। और एज अ कोच मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, इस वक्त आप जितनी भी इंपॉर्टेंट लड़कियां देख रहे हो किसी भी क्लब में, उन्होंने 6-6 साल मेरे पास ट्रेनिंग की है, ठीक है। और उनको आज बनाने वाला मैं हूँ। क्यों मानता हूँ इस चीज़ को? क्योंकि उस पर क्रिटिसिज्म बहुत था, बहुत ज़्यादा, ठीक खेल है। क्यों रही हैं? मैं 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप यकीन करो उन बच्चों को मैंने ऐसे रखा है वेयर द डिफरेंस बिटवीन देयर एज एंड माई एज वॉज नॉट मोर देन 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको इस तरह रखा है कि वो मेरी बेटियाँ हैं, ठीक है। और आज वो बच्चियाँ मुझे उसी तरह रिस्पेक्ट करती हैं। दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द क्लब, कोई मसला नहीं है, अगेन द सेम फैक्टर, वी हैड अ वेरी गुड जर्नी अलॉन्ग। उन्हीं बच्चियों ने मुझे टूर्नामेंट जिता के दिए हैं, उन्हीं बच्चियों ने इस क्लब को अच्छी खासी ट्रॉफियाँ जिता के दी हैं। हमारी जूनियर गर्ल्स टीम ने नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप दी थी इस्लामाबाद से, ठीक है, जूनियर लड़कियों ने। 90% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द स्क्वाड वर अंडर द एज ऑफ 16, ठीक है। व्हाट विल यू कॉल दिस? दिस इज प्योरली वन थिंग एंड दैट इज हार्ड वर्क, नथिंग एल्स, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुक्का लग गया, कोई ये नहीं कह सकता। हमने हर मैच परफॉर्म करके दिया है, हमने हर मैच में अच्छा गोल मार के दिया है। मेरे हिसाब से फीमेल का जो कैटेगरी होती है उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैन। सर मैं आपको बताऊं, देखें ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट्स अ न्यू स्पोर्ट, इट्स अ न्यू डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है। शाहिद साहब, इफ़ यू नो शाहिद साहब, ही इज़ फ्रॉम YRS, यंग राइजिंग स्टार। जी जी, उस बंदे ने अलॉन्ग विद बलोच साहब, दे वर्कड अ लॉट फॉर वुमेन्स फुटबॉल इन पाकिस्तान, ठीक है। आप जितने भी बड़े नाम अभी सीनियर जितनी भी लड़कियां
इंक्लूडिंग हाजरा वगैरह, ये सब जितनी भी बड़ी सीनियर लड़कियां थी, इन लोगों ने उन्हीं से सीखा, उन्हीं के हाथों आई हैं वो, ठीक है। मैं उनकी माइंडसेट को बड़ा सलाम देता हूँ कि हम तो 10 साल पुरानी बात करें, मैं 20 साल बाद 20 साल पुरानी पुरानी बात, ठीक है। तो उन्होंने अगर उस वक्त मेहनत की होगी तो वो क्या होगा, रिटायर भी कर चुके हैं। हाँ, वो क्या माइंडसेट होगा उस वक्त, किस तरह उन्होंने लेके चले होंगे। तो ट्रस्ट मी, जो कोच आके इस वक्त लड़कियों पर ट्रेनिंग करा रहे हैं, ही इज द बिगेस्ट मैन इन दिस फील्ड, आप यकीन करो, ठीक है। लड़कियों को ट्रेनिंग कराना इज नॉट एन ईजी जॉब। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू कीप द ऑल फैक्टर्स अलॉन्ग साइड एंड देन यू नीड टू ट्रेन देम एंड ट्रेन देम ऑन अ प्रॉपर लेवल। क्योंकि कोई कोच ये नहीं चाहता कि मैं उसको नॉर्मल समझ के ट्रेनिंग कराऊं। कोच चाहता है भाई मेरे लिए वो प्लेयर है एक सिंपल, और मैंने उसको उसी लेवल पे ट्रेन करना है, ठीक है। और जब आपको उस लेवल पे ट्रेन करना है तो यू नीड टू गो विद दैट रगड़ा वाला सीन, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये चीज़ें मैं सबको कहता हूँ कि लड़कियों की फुटबॉल वॉजंट दैट ईजी जितनी अब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर यंग पेरेंट्स, और यंग पेरेंट्स इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन आपके इसमें मैं लॉन्च कर रहा हूँ कि वी विल बी लॉन्चिंग द फर्स्ट एवर एलीट अंडर 12 अकेडमी अच्छा, फॉर फीमेल्स ओनली फॉर फीमेल्स। अभी इतनी छोटी एकेडमी एग्जिस्ट करती नहीं है, अगर है भी तो वो देयर नेक्स्ट विद ठीक है। क्या उस एकेडमी का माइंडसेट क्या है? मैंने 5 साल के बाद उस एकेडमी से 10 लड़कियां देनी है नेशनल टीम को, कर लो जो करना है, मैं करके दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज तक जब मेरे पास वो फोकस फैक्टर नहीं था, तो जब हमने लड़कियां प्रोड्यूस कर दी, तो जब हमारे पास फोकस फैक्टर होगा तो हम क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल 100%, ठीक है। हम लोगों ने एलीट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, एलीट प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आया? आइडिया उसका बड़ा सिंपली आया। वी वर इन कतर, 1 महीना उन कतर वाले बच्चों के लिए मैंने ऐसे कैंप लगाया जैसे ओनली थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी वॉज दोज किड्स। मैंने ऐसे कैंप लगाया, रगड़ा दिया, 3-3 साढ़े 3 घंटे का ट्रेनिंग कराई रोज की, ठीक है। पेरेंट्स की बातें सुनी, सब कुछ किया, एंड आई वॉज एवरी डे ऑन द ग्राउंड विद माई कोचेज। मौजम हुआ करता था हमारे साथ। रीजन क्या था उसके पीछे? आई वॉन्टेड अ विन, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी वेंट देयर, हमारा ग्रुप ऐसी टीम के साथ निकला हु बिकेम द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट बाय स्कोरिंग 6 गोल्स ऑन अ टीम व्हिच वाज द सेकंड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। हमारे बच्चे उनसे पहला मैच हारते हैं 7-0, ठीक है। 13 साल 14 साल का बच्चा 7-0 हार के जब ग्राउंड से निकलता है ना, तो उसकी गेम नहीं, उसका दिमाग हिल चुका होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गेम तो नहीं हिलती उस बेचारे की। स्टिल माय बॉयज मैनेज टू डू अ स्कोर लाइन 2-0 विद द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये तीनों टीमें, दो फाइनल में और एक सेमीफाइनल में, तीनों हमारे ग्रुप में, ठीक है। और हमारे बच्चे परफॉर्म करके दे रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों पे था जो मैं उन बच्चों को नहीं कह सकता था। वो फैक्टर क्या था कि बेटे जिन टीमों से आप खेल रहे हो, दे डू द हार्ड वर्क जो आपने 1 महीना किया है, दे डू इट फॉर द होल ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बचपन से कर रहे हैं ऊपर। वो सीरिया से टीम आई हुई थी, लेबनान से टीम आई हुई थी। वो लोग उधर से टीम उठाते हैं, पूरी इधर ले आते हैं। तो उनके लिए कॉस्ट फैक्टर इतना बड़ा नहीं ना, हमारे लिए तो कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है। हमने इनकी होटलिंग देखनी है, हमने इनका सब कुछ देखना है। देखिए हमने तो सेल्फ पेड टीम्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। कोई हमें सपोर्ट तो नहीं कर रहा है ना इस चीज़ पे। तो जब हम टीम लेके जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट क्या करते हैं कि यार जितनी हम मेहनत करा सकते हैं बच्चे को था। लेकिन फिर उस वक्त एक चीज़ समझ आई कि यार जब हमने सोच ही लिया है कि हमने इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने हैं, तो वाई शुडंट वी गो विद सच पेरेंट्स जो हमारे, देखिए शायद लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन एट अ पॉइंट दिस इज गुड एज वेल। किस तरह? हमने 30 वो बच्चे सेलेक्ट किए जिनके पेरेंट्स आर विलिंग टू सपोर्ट देम इन अ फ्यूचर प्लान, ठीक है। वो उनके ऊपर पैसा लगाने को तैयार है, वो उनके इंटरनेशनल इवेंट्स पे करने को तैयार है, उनके नेशनल इवेंट्स पे करने को तैयार है। अब इससे फायदा क्या होगा हमें? हमने वही बच्चा लेके जाना है 1 महीने की मेहनत पे, अब हम वही बच्चा लेके जाएंगे साल की मेहनत पे। मेहनत कौन कर रहा है? क्लब। बच्चा नहीं बदला, हमारे इंटरनेशनल टूर का बच्चा नहीं बदला, लेकिन क्या हुआ? 1 साल की मेहनत आ गई। जब 1 साल की मेहनत आ गई, दे नो द स्ट्रक्चर, दे नो हाउ देयर कोच वांट देम टू प्ले, दे नो देयर बेसिक एथिक्स, ठीक है। आप मेरे कभी एलीट के सेशन पे आ जाएं, आपको 1 मिनट लेट लड़का नहीं नजर आएगा। सब 11, 12, 13 साल के बच्चे, आपको एक बच्चा लेट नहीं नजर आएगा। ये लोग कहते हैं हिटलर है, मुझे हिटलर कहते हैं, ठीक है। लेकिन द गुड थिंग इज जब वो मुझसे मिलते हैं ना बच्चे, तो ये लोग कहते हैं शायद इससे ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा भी कोई नहीं। बिल्कुल, फील्ड पे तो फिर देयर इज नथिंग टू डू। फील्ड पे आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद देम, ठीक है। आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद देम। व्हाई? आई नीड देम टू बी डेवलपिंग। उनका डेवलपिंग फैक्टर मैंने देखना है। बट राइट आफ्टर द मैच दे आर माई ओन किड्स,
दे आर माई ओन किड्स, मैं उनको उसी प्यार में रखता हूँ, उनकी गलतियाँ देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, देर इज़ सम इश्यूज़ गोइंग एट होम, पढ़ाई में कोई मसला है, सब कुछ। तो ये जो ब्रिज हमने डेवलप किया, इसने हमें 20 सेशंस में वो रिस्पेक्ट दे दी है कि आपकी सोच है। हमारे प्लेयर्स स्ट्रक्चर पे खेलना शुरू हो गए, हमारे प्लेयर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए। हमारा प्लेयर ग्राउंड में दाखिल होता है, पूरे ग्राउंड में जितने भी चाचा खड़े हैं सबको सलाम करके आता है, रूल है, नहीं करोगे सेशन नहीं लोगे। हमने बच्चों को सबसे पहले बेसिक एथिक्स सिखानी है। ठीक है, फुटबॉल इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। ठीक है, आपको ये चीज देखें, पढ़ना तो आपको स्कूल भी सिखा रहा है, लेकिन लीडरशिप आपको ग्राउंड में आती है, बिल्कुल। डिसिप्लिन आपको ग्राउंड में आता है। क्यों? बच्चा स्कूल जाता है माँ बाप की मजबूरी से कि अम्मी अबू ने कहा जाना है, बच्चा ग्राउंड आता है अपनी मजबूरी से। अपनी मजबूरी से वो कहता है मैंने खुद खेलना है। जब उसने खुद खेलना है तो वो आपकी वो बात सुनेगा जो अपनी इंग्लिश टीचर की नहीं सुनता। तो मेरी नज़र में अ कोच इज अ बिगर रोल मॉडल देन अ इंग्लिश टीचर। बिकॉज़ वो फोर्स होके खेल रहे हैं, ठीक आपको है। शौक से आ रहा है वो। मैं आपके सारे स्कूलों के पीई टीचर्स को कहता हूँ, भाइयों खुदा का नाम है, शो अप एज अ स्कूल टीचर। ठीक है, आप एक टीचर हो एंड यू हैव द पावर टू चेंज अ प्लेयर्स लाइफ, अ स्टूडेंट्स लाइफ, नो अदर टीचर हैज दैट। बिल्कुल। ठीक है, ये क्लियर बात है, ये बहुत बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो आपको ज्यादा एडमायर करता है रादर देन एनी अदर टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आपको पसंद करता है, आप उसको वो चीज करा रहे हो जो उसको उसका शौक है। ठीक है, और बाकी वो चीज करा रहे हैं जिससे वो भागता है। ठीक है, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, बच्चे की मेथोडोलॉजी पे आना पड़ेगा हमें। अंडरस्टैंडेबल। तो वासी भाई हमें बताएं कि यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट द लीग दैट यू आर क्रिएटिंग, एंड सिंस वी नो कि ऑलरेडी एक और लीग इन प्लेस आ रही है, अ फ्रेंचाइज लीग इन पाकिस्तान, एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड साल के एंड पे पीएफएफ भी कुछ कोशिश कर रहा है लाने की। सो व्हाट आर यू गाइस डूइंग, और फिर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग, एंड थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले वी आर डिफरेंट बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। ठीक है, हम अपनी ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। ठीक है, बुरा माने सही माने, लेकिन हम अपनी ग्राउंड रियलिटी जानते हैं कि ग्राउंड पे है कैसे। अभी भी यकीन करें, हमें कोई भी आके कहता है ना, पीएफएल कहता है, पीएफएफ कहता है कि मिलकर कराते हैं, मिलकर काटेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठे, हम डेवलपमेंट के लिए बैठे। ठीक है, क्लब अपना पैसा लगा रहा है सीजन 1 पे। ठीक है, नहीं भी आती फ्रेंचाइजीज, क्लब तैयार है पैसा लगाने के लिए। ठीक है, हम लोग तैयार हैं पैसा लगाने के लिए, और हम सीजन 1 कराएंगे ही कराएंगे। अगेन फैक्टर्स आर कि अगर हम यूथ लीग करा रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से अपने रूल्स रख के कराएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा लाओ बेफॉर्म दिखाओ और खेल लो। भाई एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी ने कह दिया प्लेयर गलत है, बाहर है, खत्म, नहीं खिलाना यार। शायद मैं एक प्लेयर के साथ ज्यादती कर दूं, लेकिन 100 के साथ शायद इंसाफ भी कर दूं। ठीक है, एक के साथ हो जाएगी, एक से ज्यादती मैं मान गया, लेकिन 100 के साथ इंसाफ तो होगा ना। बिल्कुल। ठीक है, बच्चे का दिल तो खुश रहेगा ना कि मैं गया था मैच खेलने में, प्रॉपर मैच खेल के आया। ठीक है यार, ट्रस्ट मी, इस वक्त कोई भी लीग पाकिस्तान में शुरू होती है, इट्स नॉट इनफ टू केटर द होल पाकिस्तान। 100% बिल्कुल। ठीक है, कोई ना कोई कहेगा कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छा 50 अकेडमी, आप 50 लीगें भी खोल दो ना, तो इट्स नॉट इनफ टू केटर द फुटबॉल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जितनी लीगें आएंगी इट विल डेवलप पाकिस्तान फुटबॉल। पाकिस्तान फुटबॉल कैसे डेवलप होगा? आपकी नेशनल टीम के लिए प्लेयर नजर आएगा। ठीक है, चैलेंज कप्स वगैरह क्यों होते हैं कि पता चले कि कौन सा प्लेयर कैसा डेवलप हुआ, उसको उठाए नेशनल टीम में लेके आ जाएंगे। ठीक है, जब फोकस ही ये है तो यार जितनी मर्जी लीगें हो रही है वो बेनिफिट ही कर रही है ना, मुल्क को खराब तो नहीं कर रही। बिल्कुल। ठीक है, बच्चे का 4 रुपए का फायदा ही हो जाएगा ना, नुकसान तो कोई नहीं हो रहा, बच्चे से कोई पैसा ले तो नहीं रहा ना, सब उनको दे ही रहे हैं ना, सब उनको पैसा नहीं भी दे रहे, डायरेक्टली मनी नहीं भी दे रहे, तो उनको वो चीजें मुफ्त में दे रहे हैं जो उनको पहले पैसे में मिलती थी। तो बेनिफिट तो एट द प्लेयर का ही हो रहा है ना। तो होने दो यार, क्या जा रहा है। मैं तो कहता हूँ जितनी मर्जी, लेकिन मैं आपको यकीन करो, मैं बहुत लोगों के साथ बैठा होता हूँ, मैं उनको कहता हूँ यार पाकिस्तान की फुटबॉल अकेडमियाँ सही करनी है ना, सिर्फ एक काम करो, आपस में लड़ना बंद कर दो। बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान में अगर 100% बच्चा फुटबॉल खेलता है ना, तो उनको कैटर करने के लिए 5% अकेडमियाँ भी नहीं है। ठीक है, रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर, जस्ट थिंक कि आप वो बाकी 95% कैसे गैदर कर सकते हो। ठीक है, भागो एक दूसरे के पीछे भागने की जगह उन 95% और 95% के पीछे भागे ना, तो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है ना कि हमें अच्छा प्लेयर चाहिए, हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, सब कुछ सारी की सारी पूरी हो जाएगी। हमने पिछले 2 महीने में 11 स्कूलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, एक साथ लॉन्च करें। क्या रीज़न है कि यार अगर मैंने एक ऐसा कोच रख लिया है हु इज़ एबल टू कोच माई कोचेज एज वेल, तो मैं उस बेचारे को ज़ाया क्यों करूं? मैं उसको एक टीम दे के क्यों ज़ाया करूं? मैं उसको कहता हूं तू टीम छोड़,
तू जा मेरे कोचेस 20 कोचेस को ट्रेन कर दे। जब वो 20 कोचेस को ट्रेन कर देगा ना तो मेरी 20 टीमें अच्छी हो जाएंगी, 20 टीमें अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल। रादर देन वर्किंग फॉर वन टीम। ठीक है, हम वाहिद क्लब में हंसते हैं लोग हमारे पे कि यार ये कोचिंग कोर्स कराते हैं। हम अपना कोचिंग कोर्स खुद बनाते हैं और हम वो कराते हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एक्सपीरियंस हैं। यार मेरी एज में किसी ने 10 साल अकेडमी में काम नहीं किया, मैं अभी गारंटी देता हूँ उधर बैठ के, कोई पाकिस्तान से बंदा उठा के दे दो मुझे। आई एम 25 एट द मोमेंट, आपको भी नहीं पता ये बात। अच्छा, ठीक है, आई एम 25 एट द मोमेंट। ओके, ठीक है, आई थॉट 35 होंगे। इसको कल्ट ही कर देना। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी क्लियरली बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड मैंने अपनी पहली टीम ट्रेन की थी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पोपो एफसी। मैं पोपो एफसी के साथ रहा काफ़ी टाइम। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि ये नहीं कि मुझे उससे कुछ बहुत फ़ायदा हो गया, मुझे उससे सीखने का वक्त मिला। सीखते 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 आज मैं 25 साल का हूँ तो मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। शायद मैंने कोचिंग कोर्सेज से इतना नहीं सीखा जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख चुका हूँ। ठीक है, तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं खड़े होकर 4 लोगों को एजुकेट करके उनको बेहतर कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करता। हम लोग कोचिंग कोर्स कराया हमने पहला, जब मैं और ये वापस आए लेवल 2 करके, हम लोगों ने कुछ 3 दिन 4 दिन तो लगा के सिर्फ एक कोर्स रेडी किया। जब हमने 4 दिन लगा के मौजूद में मैंने कोर्स रेडी किया, हमने कोचेस को पढ़ाना शुरू किया तो कोचेस वर लाइक ये तो वो चीज़ें जो हम रोज़ कराते हैं लेकिन हमें पता नहीं था हम क्यों कराते हैं। आप यकीन करो 2 बच्चे हमें कराची से ज्वाइन किया, एक लड़की कोच थी उसने हमें कराची से ज्वाइन किया। वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं थी, हमारे क्लब के लिए नहीं काम करती, हम अभी कराची में नहीं है, लेकिन उसका हमारे ऊपर ट्रस्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि शी इज़ कमिंग फ्रॉम होल द वे फ्रॉम कराची हमारे से कोर्स करने। और आखिरी दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वर यू हैप्पी विद द कोर्स? कहती है वास्तव आई एम सो हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ें सीखी जो मैं रोज़ कराती हूँ, उनका मकसद मिला मुझे कि मैं क्यों कराती हूँ। ठीक है, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ आज मैंने ट्रेनिंग करा दी है, घर जाओ सुकून से सोचना कि वास्तव को फंसा कैसे सकता हूँ और कल मेरे से लिए सवाल लेके आना, पूछना कि वास्तव ये चीज़ आपने कराई थी, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। Players need to be questionable to their coaches and coaches need to answer their players rather than ये सवाल नहीं है, ये पूछने वाला सवाल नहीं है। 10 राउंड लगवाए, क्यों लगवाए, क्यों क्या लगवाए? फायदा था उनका? ठीक है, आपका माइंडसेट में क्या था। आप यकीन करो हमारे वार्म अप्स क्या होते हैं, मैंने किसी दिन पासिंग की ड्रिल करानी है ना, मेरा वार्म अप भी पासिंग से होता है। क्यों? आप 12 साल के बच्चे को ये बताओगे ना रनिंग कराने के बाद आज खड़े होकर पासिंग करनी है, वो कहेगा यार ये क्या बंदा है, इसको मैं क्या करूँ। ठीक है, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे हमसे बहुत तेज है क्योंकि इन्होंने नई फुटबॉल देखी है, ये रोज देख रहे हैं, ये हर इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं। आप रादर देन उनको कहोगे खाली इंटरनेशनली, फिर वो लाइक यूट्यूब पे जाके बाकी चीजें भी देख रहे हैं, ट्रेनिंग जो बाहर हो रही है वो देख रहे हैं। वो हर किसी, अब एवरीथिंग इज वेरी इजीली एक्सेसिबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सारे कोचिंग कोर्सेज अवेलेबल है, आपका सब कुछ अवेलेबल है, आपके ट्रेनिंग स्केड्यूल सारे कुछ अवेलेबल है। अब होता क्या है, अब होता ये कि बच्चे को अगर मैंने वार्म अप में ही पासिंग शुरू करा दी कि यार आज हम लोग वार्म अप ऐसे करेंगे कि जॉग करें साथ पासिंग करेंगे, क्या होगा, बच्चे के माइंड में फील हो जाएगा कि आज हम पासिंग पे वर्कआउट करें, तो उसकी जितनी भी ड्रिल चलती रहेगी ना वो विल बी एसोसिएटेड विद पासिंग। हम क्या करते हैं, हम 13 साल के बच्चे को कहते हैं आओ आओ शूटिंग करते हैं, शूटिंग की, आओ पासिंग करते हैं, पासिंग की, आओ हेडिंग करते हैं, हेडिंग की। बच्चा सारा कुछ भूल गया। हाँ बिल्कुल, सब कुछ भूल गया, वो कुछ नहीं याद रखेगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। बच्चे का माइंड है, उसको एक चीज अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। तो रादर देन गोइंग फॉर 6 थिंग्स, गो विद वन थिंग इन 6 डिफरेंट वेज। आपका फोकस एक ही रहना चाहिए बच्चे को लेके कि अगर मैंने आज पासिंग करानी है तो मैंने पासिंग ही करानी है, लेकिन उस बच्चे को बोर ना हो 6 अलग तरीके में करानी। आपका माइंडसेट नहीं चेंज हो, लेकिन बच्चे को लगे कि हम 6 डिफरेंट ड्रिल्स करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जस्ट रैपिंग एवरीथिंग अप एंड कमिंग बैक टू द लीग, आपका ओवरऑल फॉर्मेट किस तरह का है एंड व्हेन आर यू गाइस प्लानिंग टू लॉन्च, और शुरू में आप किस एज ग्रुप को लॉन्च टारगेट कर रहे हैं एंड आपकी ओवरऑल प्लान्स क्या हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले यूथ ग्रुप को टारगेट करेंगे, ठीक है, अंडर 17 अंडर 16। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि वी बेसिकली वांट कि उन बच्चों को चांस मिले जिनको आज तक नहीं मिल पाया। ठीक है, उनमें से हम भी थे। हम कैसे थे कि हम लोगों का जब पीक था उस वक्त PFF बंद थी, ठीक है। तो अब के बच्चे को ये फील ना हो कि यार मेरे लिए कुछ बंद है, उसके लिए रास्ते खुले, लीग्स खेल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हम तो चाहेंगे यार, मैं चाहता हूँ जितने बड़े बड़े कोचेज आके उन बच्चों को देखें, वी वुड अप्रिशिएट, वी विल होस्ट देम एट आवर बेस्ट लेवल। ठीक है, मुझे कोई भी बंदा ये कहना कि हमने आके आपके एक्सपेंस पे रहना है, कोई ऐसा कोच है जो इन बच्चों को बेनिफिट दे सकता है, मैं कसम से वो भी करने को तैयार हूँ। क्यों? मैंने एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंस ला के दिखाना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने बात की स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर हमारा यार सिंपल सा है कि हम लोगों ने
8 से 10 टीमें रखनी है, ठीक है, और उन्हीं को एज अ फ्रेंचाइज सब कुछ प्रोवाइड करना है फ्रॉम कोचेस टिल एवरी सिंगल फैसिलिटी, और वो टीमें विल बी प्रॉपरली इक्वल विद ईच टीम In terms of management and in terms of facilities, everything. इन टर्म्स ऑफ टीम एज वेल। हम प्रॉपर ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे, हम सब कुछ प्रॉपरली आउटलुक करेंगे, और जो मेन मैनेजर है इट वोंट बी इन्वॉल्व इन द टीम मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जो हेडिंग मैनेजमेंट होगी वो टीम के अफेयर्स में। उन्होंने देखे, उन्होंने प्लेयर्स को टायर्स दे दिए कि टायर ए का प्लेयर, टायर बी का प्लेयर, जो भी, ठीक है। अब उससे होगा क्या? जब उन्होंने दे दिया ना, अब कोचेस ने उठाने हैं। अब हर टीम में अगर हमने इक्वल प्लेयर्स दे दिए तो क्या होगा? लीग हो जाएगी कम्पिटिटिव। बिल्कुल। जब लीग कम्पिटिटिव होगी ना तो आपको हर प्लेयर की स्ट्रेंथ नजर आएगी, हर प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आएगी। अगर आपने एक टीम खड़ी कर दी, जैसे लाहौर में ये चलता है, फुटबॉल खत्म करनी है, खड़ी कर दो एक टीम, खत्म कर दो, खत्म कर दो। ठीक है। कल को बच्चे मेरे पास आए, यकीन करो, आई वाज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, मैंने आपको पीछे से पहले भी बताया पॉडकास्ट। अ किड कम टू मी और उसने कहा वास्तव में लेट्स रिवाइव द गेम। मैंने कहा आजो, मैं फिर कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं नहीं, है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बहुत एक चीज़ याद रखना, हम 10 प्लेयर रखेंगे, हम उससे ऊपर एक प्लेयर नहीं रखेंगे, लेकिन वो 10 प्लेयर की हार्डवर्क चाहिए। हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट एंड क्यों? हार्डवर्क। आप 11वां प्लेयर रख के क्या करोगे उसके साथ? ज्यादती करोगे ना बैट बैठोगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों रखते हो 11वां? वो बेचारा कहीं खेल तो लेगा, ठीक है। मेरे बच्चे अभी LFL की बी लीग खेल रहे हैं, मेरे पास एक बच्चा आया। You are topping the table, right? हाँ, Topping the table. वी आर नाउ सेकंड, आई गेस। Second year. अब नाउ वी आर सेकंड। तो मेरे पास तो बच्चा आया, बच्चे ने आके कहा ही वाज बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग एकेडमी का मेंबर, एंड आई गेस ही वाज द फर्स्ट कैप्टन, मुझे याद पड़ा है लाहौर के लिए। वास्ती भाई, यू गाइस हैव अ स्लॉट और हम लोग आपकी तरफ से खेलना चाहते हैं। मैंने कहा बेटे, एट दिस मोमेंट आई कैन ओनली डू इज कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूंगा, अदर देन दैट आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे कोचेस ट्रेनिंग करा देंगे, उसके अलावा आप लोगों ने सब कुछ खुद ही करना है, हम अभी नहीं बीच में पड़ रहे, क्योंकि वी आर रियली बिजी विद आवर टूर्स एंड एवरीथिंग। कहते हैं वास्ती भाई डन करें बस। उस बच्चे ने बगैर कोच के टीम को फर्स्ट पे रखा है थ्रू आउट द लीग, और अभी आई गेस वो सेकंड पे। I think मैचेस का डिफरेंस है, बट वो हो जाएगा। ठीक है। मैं कहता हूँ थर्ड भी आ जाए, हमारी तरफ से क्या इन्वॉल्वमेंट है? सिर्फ पैसा ही था ना, पैसे ही था, उसके अलावा मेहनत किसकी है? उनकी है। और अभी you are not even heading it properly, you're not focusing. मैं कल खड़े यही बात कर रहा था, मैंने कहा यार अगर मैंने 10 शहजादे बगैर किसी लीडर के इस मुकाम तक पहुंच गए ना, तो जब 10 शहजादों को एक लीडर मिल जाएगा ना, एक कोच मिल जाएगा, तो वो किसी और ही मुकाम पे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, कोच का फैक्ट कोच का फैक्ट है, वो नहीं चेंज हो सकता, वो कोई चेंज नहीं करता। तो यही लीग पे स्ट्रक्चर है हमारा, कि हम लोगों ने बच्चों को ये बताना है कि यू गाइस आफ्टर द मैच यू ऑल आर फ्रेंड्स, बट ड्यूरिंग द गेम यू आर राइवल्स। ठीक है, वो एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप होगी लीग की विच विल अफेक्ट द होल फुटबॉल इन पाकिस्तान। ठीक है, कल को कराची का बच्चा पिंडी के बच्चे को कहेगा यार तुमने आज, वो कोच ने कहा था 10 स्प्रिंटें लगानी, तुमने लगाई। काउंटेबल होल्ड करें। जब टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे ना इन बातों से कि वो हमने उसे खाने जाना थी और खाने थे, ठीक है, उससे टॉपिक चेंज होकर इधर आ जाएगा कि कल हमने ये ट्रेनिंग करनी थी, नहीं की, आपका फुटबॉल चेंज होगा। तो द माइंडसेट इज स्टिल वेरी इनटू इट कि नहीं यार चलो बाहर पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमने उस माइंडसेट को चेंज करके लेके आने हैं, नहीं यार चलो आज ट्रेनिंग करते हैं ताकि कल हमें फ़ायदा हो। वो कब होगा? जब हम लोग सबको एक पेज पे लेके आएंगे। मैं आपको यकीन करूँ, मैं अपने कुछ मेन बच्चे हैं उनको तो मैं पिंडी और लाहौर को लड़ाता रहता हूँ आपस में। उस लड़ाई में क्या होता है, वो 13, 12, 14, 15 साल के बच्चे हैं, उनको लड़ाने का क्या फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये होता है कि वो इधर मेहनत करता है, वो उधर मेहनत करता है हराने के ठीक लिए। है, वो एक फ्रेंडली ग्रज पैदा करते हैं ताकि वो आपस में एक कंपटीशन रखें। जब वो कंपटीशन आ जाए डेवलप, ठीक हो गया, ठीक है, सही हो गया। तो वो वाला सीन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। चलें, लेट्स जस्ट रैप दिस अप, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आपने अपना टाइम दिया एंड यू थैंक केम यू हियर। सो मच फॉर कॉलिंग अस, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड आउटलुक। Yep, and I'm hoping inshallah we'll talk more in Islamabad probably. Inshallah. And yep, thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Take care. Allah Hafiz.